Hi, Shubham, and congratulations Hi, for sir. clearing your research or maybe equity research role. So I'm happy. So guys, this is Shubham Pandey. He was a part of RK Advisory, and he had a big gap in his CV of 1 year. He's an MBA finance, but working in some other field, and suddenly uh, he had left his job because of some XYZ reasons, and now he was planning to come back again. Specifically, he was interested in equities. Shubham, you are 28, his age? Yes, sir. Yes, sir. 20. So yeah, he's 28 years and still, if people think that getting into equity research is not that easy. I agree, it is not that easy. Freshers are not entertained. So even Shubham at the age of 28, he was a fresher, but उसने job छोड़ा था. So obviously when you again restart, you will be called a fresher. But so Shubham, so can you tell everyone that how did maybe your how did you land at this job? मैं को नहीं चलना कि आरके एडवाइजरी में तुमने क्या किया, but what helped you on a daily basis that helped you land this job? Thank you, sir, for, the, for this. With as sir, क्योंकि last from April 2025, I am doing internship under you. So from that time, I was regularly attending your morning call sessions in which we used to discuss daily newslet, the daily newspaper things, and all these things. From from that thing, at least I was getting some. I was connected to the at least equity market because earlier I was not that much connected to that news part. I was connected to the market. I was mostly into the derivative trading side, but I was not that much connected in the to the fundamental thing. So what happened as I was having a big gap of 2 years in my CV. So because of this, I was most of the most of my CV selection there it was difficult to get my CV to get shortlisted. I did internship program. So so I started doing internship under you to gain practical knowledge of the fundamental research. And what happened, and I was actively searching for job in the profile. So this company with this one company in Noida, they were looking for equity portfolio manager. So I applied for that, and they want someone who has experience of both the technical and the fundamental part. So technical in the sense some derivative experience also. So I was having derivative experience from last 2 3 years, and the fundamental experience which I gained from the RK advisory, which I was regularly joining, which I was getting from daily joining your classes. So Shubham, Yes. so let's say experience and you are doing an internship under me, that's fine. But when you join, I think it was April, तो अभी August हो गया and you were not consistent enough, in the classes. हमने भी एक इंटरव्यू Yes. करवाया था, मैंने तुमको एक रेफर किया था, but somehow Exactly. you were not able to talk on that part, तो एक्सपीरियंस भी मिल गया तुमको एक्सपीरियंस इंटरव्यू का. एंड जो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग हम करते हैं ना, जैसा मैंने अभी दिख रहा है मुझे कि ना तुम वो कैमरा में बराबर देख रहे हो, तुम्हारा बैकग्राउंड चेंज Sir, है, बट actually, right now I'm using my mobile phone. Earlier in अच्छा tablet, अच्छा. it was the mobile phone was सामने है अच्छा, वो कैमरा. तो वही तो मतलब यू हैव चेंज इट में दिख रहा हो कि तुम्हारा बैकग्राउंड चेंज है, वरना पहले तो मेरा अलग बैकग्राउंड में थे. तो वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स भी जो विद्या मैम लेती है, आई थिंक इट हैज हेल्प. मतलब आई कैन सी दैट डिफरेंस कि यू आर डूइंग इट. और हमने भी वो एक मॉक इंटरव्यू लिया था तुम्हारे इंटरव्यू के पहले. तुम जो Yes. बात कर रहे थे, यू आर नॉट टॉकिंग स्पेसिफिकली इनटू, तुम बातचीत नहीं कर रहे थे, तुम वो सीवी रीड कर रहे थे. बट अभी तुम ठीक है, इफ यू हैव क्लियर द राउंड, ऑब्वियसली इट मींस दैट यू हैव परफॉर्म मच बेटर. एंड ऑब्वियसली मैंने तुमको रेफर नहीं किया इसमें, एंड स्टिल यू हैव Yes. गॉट इट. तो मैं तुम्हारा तो कोर्स भी कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, कोर्स अभी तक चल ही रहा है, मॉडलिंग अभी तक चल रहा है, बट स्टिल यू आर एबल टू गेट अ रोल. तो क्या मैं बोलूँ कि इट इज योर एफर्ट्स दैट हेल्प रादर देन, मतलब मेरा तो ठीक है, आई हेल्प यू, बट तुमने भी तो एफर्ट्स डाले उसके बाद कुछ तो. Yes, sir. I was actually searching on LinkedIn also. So when I got this profile, so I applied for that. But in the interview, the major role was that apart from the technical knowledge, the fundamental knowledge which I able to tell to the interviewer was mostly because of the sessions which I took regularly part.
And also one thing that the corporate training which Vidya ma'am was taking daily, it's almost 1 month. Yeah, one month has been completed. So so she told how to express means how we should explain our CV in a story format, and how we should be prepared for the interview and all the GD topics, and also how the interviewer confuses you in between. So these also, and how we should respond to that question. Like we should not just get confused. We can borrow some time from the interviewer and things like this. These things help a lot in interview also. Great. So I think you have overall developed it, and I'm happy that तुमको इतने गैप के बाद I still remember तुमने you reached out to me saying that sir CV में इतना बड़ा गैप है, अभी वापस वो गैप को फिल कैसे करना है, डिफिकल्ट है ना. आई कैन ऑल्सो सी मेरे भी सीवी में गैप है. इट बिकम्स डिफिकल्ट टू टेल कि अरे ये सीवी में गैप है. बट सिंस तुमने वो सब न्यूज फॉलो किए थे ना, मॉर्निंग कॉल से अटेंड करने के, बोले तुम बात नहीं करने के बट कम से कम सुनने के. एंड इंटरव्यू में जाते हो तो मैंने मेंशन भी किया था कि यू हैव टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट यू डू ऑन अ रेगुलर बेसिस. Regular. इफ आई आस्क यू कि व्हाट आर द थिंग्स दैट दैट आरके एडवाइजरी की चीजें कौन से तुमने बोले इंटरव्यू में, तो कौन से थे वो? Ask you. So basically, what happened, the starting 2 3 questions were something more about the derivative side. Then there were two interviewers, so the other ma'am was expecting more some fundamental things. So she wanted that I should be much connected to the fundamental part of the equity side, and also I should be connected to the news, the geopolitical news and these things. So so वहीं से वो starting आ गई थी. So then I said that I am currently undergoing the internship, the training program under this ARC advisory. And so वहाँ से जो हम FMCG और ऑटो सेक्टर ट्रैक कर रहे हैं, सो लास्ट अप्रोक्सीमेटली द ऑटो सेक्टर के मतलब मैंने 8 कंपनीज के फोर व्हीलर और 4 2 व्हीलर कंपनीज के नंबर तो हमने पंच करे ही थे मंथली लेवल पे, जो आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह दिए थे, और क्वार्टरली नंबर्स भी हम FMCG कंपनीज के पंच कर रहे थे. तो एटलीस्ट वहां से जो मतलब अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई थी कि एक्चुअली ये कंपनी कर क्या रही है, इनके सेल्स ग्रोथ कैसे क्या हो रही है. और क्योंकि हम रिपोर्ट भी बनाई थी हमने मंथली, जो जो डेली एक एक तारीख को जो ऑटो कंपनी जो अपने नंबर पब्लिश करती है, तो हम डेली मतलब आप मतलब मंथली रिपोर्ट भी आपने बनाने को टास्क दे रखा था. जो लास्ट मंथ मैंने जून मंथ की रिपोर्ट बनाई थी, तो उससे थोड़ा मेरे को ब्रीफ हो, थोड़ा आइडिया मिल गया था कि कैसे क्या चल रहा है. और वही चीज हम न्यूज से भी कनेक्ट कर रहे थे, जो डेली अब बताते थे कि ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है, कि अपना जो ये अपना एसयूवी सेगमेंट की ग्रोथ हो रही है, और हैचबैक सेगमेंट में मतलब थोड़ा लास्ट अगर 1 साल में देखें तो ग्रोथ डिक्लाइन हुई है वहां पे. तो वो सब चीजें भी मतलब जो, क्योंकि मेरे पास उस टाइम बोलने के लिए टॉपिक था, तो मतलब अपने आप ही आ रहा था, क्योंकि मैं डेली मतलब न्यूज कॉल अटेंड कर रहा था. तो मेरे को था कि डेली तो मैं सुन ही रहा हूँ, ये सब चीजें हो ही रही हैं जो डिस्कस हो रही हैं क्लास में, तो वो मतलब अपने आप फ्लो फ्लो में चीजें निकल ही रही थी. और फिर FMCG में जो ये कॉफी के प्राइसेस वगैरह का जो चल रहा था, जो लास्ट 1 1.5 साल में जो प्राइसेस डबल हुए एक्चुअली, जो कॉफी के, फिर थोड़ा कूल अभी 3 4 महीने से देखें तो थोड़ा डिक्लाइन हुआ है. तो अभी जो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट का जो भी कॉन्फ्रेंस कॉल हुआ था, तो उसमें भी उन्होंने ये सब वो मतलब न्यूज कॉल में अपना डिस्कस हुआ था, मॉर्निंग जो हुई थी हमारी कॉल में, तो वो डिस्कशन हुई थी कि कौन कॉल में जो मैनेजमेंट ने बताया था कि इनके पास इन्वेंट्री रखी हुई है हायर स्टॉक में, तो वो भी अभी जो बेचेंगे तो वो भी कम प्राइस में नहीं बेचेंगे, वो अपने जो उनके पास पुराने प्राइस में पड़ी हुई है तो वो उसी रेट में बेचेंगे. ऐसे नहीं कि प्राइसेस कम हुए कॉफी के तो वो भी अपने प्राइस डिक्लाइन कर देंगे. तो मतलब वो सब मैं चीजें एक्सप्लेन कर रहा था. और साथ में जो अपना ट्रेंड जो शिफ्ट हुआ है प्रीमियमाइजेशन के तरफ अर्बन सेक्टर में, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन किया. तो मतलब मेरे पास कई चीजें थी मतलब इंटरव्यू में एक्सप्लेन वो बताने को, तो उसकी वजह से मतलब जब मैं फ्लो फ्लो में बता रहा था तो मतलब मेरा मेरा भी खुद कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था. मतलब मैं यूं नहीं कि कहीं बीच में स्टक हो गया है कुछ, तो बताने से मतलब खुद ही कॉन्फिडेंस आ रहा था मुझे. जी जी. मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो अगर तुमने सिर्फ मॉडल बनाए होते हैं, मॉडल तो तुमको आता है बनाने को, करेक्ट, तुमने एमबीए में बनाया हाँ. होगा, तो हाँ वो सर. बेसिस पे अगर तुम सिर्फ जाते इंटरव्यू को तो क्या होता? ये वो सब बोल बेसिस पाते? में तो सर, वो बेसिस पे तो मुश्किल ही होता सर, क्योंकि मॉडल्स में भी बस ऐसा है कि चलो मॉडल्स में भी हम मतलब एक खाली बस नंबर पंच करके और
मतलब स्टेप बाय स्टेप ऐसे बस फॉर्मूला लगाया, बस वहां से वो लिंक किया, मतलब इंटरव्यू में वो तो चलो एक तरीके से एक प्रोसेस हो गया खाली बस। मगर एक्चुअली कंपनी की अंडरस्टैंडिंग तो, जो कंपनी मतलब कि क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है, मतलब क्या उसके रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं वगैरह, वही आइडिया नहीं होते तो मतलब उसके बिना हम क्या ही मतलब एक्सप्लेन कर पाएंगे कंपनी को। वो तो मतलब फाइनेंशियल मॉडल में तो क्या है, बस वो स्टेप बाय स्टेप मतलब वहां से फ्री कैश फ्लो निकाल के गॉड मतलब आगे के 5 साल के फोरकास्ट कर दे, फिर गोल्डन ग्रोथ से टर्मिनल वैल्यू, मतलब वो सब तो मतलब एक फॉर्मूले से मतलब अपने आप ही वो आ जाता है। मतलब दो तीन फॉर्मूले उसमें प्लस माइनस करके। मगर एक्चुअल में जो कंपनी की अंडरस्टैंडिंग होती है वो तो फिर थोड़ा मतलब स्टडी करके ही आता है वो। और एक्चुअली में जो इस इंटरव्यू के लिए जो मैम को मतलब जो अंडर मैम को जो चीजें चाहिए थी, वो ऐसा भी नहीं था कि मतलब कि फॉर्मूले हो या कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग चाहिए हो। अगर वो चाहिए तो कुछ वो फॉर्मूले वगैरह भी पूछ लेते, कुछ रेशो। कुछ थी मगर ऐसा कुछ नहीं था। मतलब मेन उनको ये था कि जो मतलब कैंडिडेट है वो एटलीस्ट न्यूज वगैरह से भी कनेक्टेड हो, और थोड़ा मतलब उसको सेक्टर वगैरह की भी एनालिसिस करना, उसको एनालिसिस करना आता हो, या एटलीस्ट कोई सेक्टर ट्रैक कर रहा है तो उसको अंडरस्टैंडिंग हो सेक्टर की। तो मैं भी बोलता रहता हूँ क्लास में कि ना मॉडल्स बनाना मेरे को बनाना है, मैं आधे घंटे में मॉडल बना दूंगा, नथिंग टू डू। एआई तो 10 सेकंड में मॉडल बना देते हैं, मैं फिर भी आधा घंटा लगेगा मुझे बनाने को एज एन ह्यूमन। तो वही मैंने भी बोला था कि मॉडल से वैसे भी काम में आते नहीं है। तो गाइस यू नो दोज हु आर लिसनिंग टू दिस कॉल, फाइनेंशियल मॉडल इज इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, इट इज टाइप ऑफ एक्सेल दैट यू यूज इन योर फाइनेंस। तो फाइनेंशियल में एक्सेल तो मॉडलिंग हो गया, तो यू नीड टू नो ऑल दिस थिंग्स, बट ऑन दैट नो यू हैव टू गिव ना समथिंग एल्स। क्योंकि सी इफ आई आई रेफर्ड शुभम फॉर वन ऑफ द रोल्स, बट उसमें ना उसका इंटरव्यू में जो बात किया, इतना इतना खराब बात किया। आई थिंक वो रिक्रूटर ने ना मुझे बोला कि जाने दे उसको, मुझे कुछ पूछना ही नहीं है, हम इससे बाद में बात करते हैं। बट सम नो ही ट्राइड अगेन नो फिर। यार एक कितना 10-15 दिन हुए शुभम वो इंटरव्यू को? 15 दिन ही हुए होंगे, 2 वीक हुए हाँ होंगे। हाँ, 10-12 दिन, हाँ। 10-12 दिन ही हुआ है। एंड he developed his skills, coming on to corporate training that Vidya ma'am takes, which is goes on 7 to 8 every day. And I can see, I can see the difference as well. मेरे पास तभी का वीडियो नहीं है तुम्हारा शुभम, बट आई कैन सी दैट कि तुम अलग से बात कर रहे हो, एंड प्रोबेबली यू हैव गॉट द रोल, सो इट इज हैप्पी। मेरे भी मैं भी खुश हूँ कि चलो मेरे मैं मतलब मेरी जरूरत तुमको पड़ी नहीं, क्योंकि अभी तक कोर्स तो खत्म हुआ नहीं है, जबकि मैं तुमको एक बार रेफर किया था। somehow you didn't clear, but ठीक है चलो, अच्छा रोल मिल गया, ऐसा नहीं है कि हम तुम्हारे एरिया के नजदीकी है, तो इट इज हाँ, गुड। साथ में ही तो यू कैन गुड डन एंड स्टार्ट योर न्यू करियर एंड बी इन टच। तो क्या है कि हम भी इक्विटी में हैं, तो तुम हमें तुम्हारी भी स्ट्रेटेजीज बताओ हमको थोड़े। है। श्योर सर। So all the best Shubham. Anything specifically to review about RK Advisory, अगर जिसको ज्वाइन करना है, करना चाहिए, हेल्पफुल हुआ या? एक्चुअली में जिसको कोर अगर इक्विटी रिसर्च में टारगेट करना है तो वो तो सर बेस्ट चीज़ है, क्योंकि अगर मेरे मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ, मेरे एक्चुअली मैंने 2020 में अपनी एमबीए कंप्लीट करी थी। उस टाइम भी मतलब मेरे को लग रहा था अगर उस टाइम भी कोई अगर ऐसा मतलब होता, क्योंकि उस टाइम में मैं सब चीज़ों मतलब सब जैसे स्टडीज वगैरह चल रही थी तो सब कंसेप्ट, मगर उस टाइम पे मतलब थोड़ा एक्टिवली हम स्टडी करते हैं, क्योंकि अब तो गैप हो गया 4-5 साल का, तो फिर थोड़ा सा मतलब वो आ जाता है कि मतलब इतना स्टडी किए हुए इतना गैप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा इशू आ जाता है। मगर मेरे को लगता है अगर उस वगैरह कुछ होता है, क्योंकि डेली एक तरीके से डिस्कशन भी होती है न्यूज़ के रिगार्डिंग, तो उससे हम कनेक्टेड रहते हैं चीज़ों के। और वही चीज़ जो आप न्यूज़ में मतलब बताते हो, वही चीज़ हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं जो अपने रिसर्च में, जो अपना अभी जैसे हम ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी सेक्टर ट्रैक कर रहे हैं, तो वही न्यूज़ को आप कैसे कनेक्ट करवाते हो, मतलब कि हम कैसे देख सकते हैं नंबर्स को कि आगे क्या इम्पैक्ट होगा, या उस न्यूज़ का आगे। जैसे कि अभी ऑटोमोबाइल में भी जैसे आप बताते हो कि ये डोमेस्टिक डिस्पैच और ये अपना डीलर वाले उसमें, कि अभी हम क्या देख सकते हैं आगे, अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। जैसे चैनल चेक भी आप बताते हो कि आपके नियर बाय एरिया में जैसे शोरूम्स में ऐसे सेल हो रही है, या तो उससे भी मतलब उससे हम कैसे मतलब उस चैनल चेक से हम कैसे मतलब प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या मतलब कंपनी नंबर डिलीवर कर सकती है फ्यूचर में। तो वो सब चीजें मतलब इतना मुझे पहले आइडिया नहीं था, क्योंकि कॉलेजेस में तो बस खाली एक तरीके से हम
करिकुलम ही कंप्लीट करने में लगे रहते हैं उस टाइम पे, तो इतना इन डेप्थ इतना देखते नहीं है। और जैसे आप ये भी बताते हो कि अब जैसे फाइनेंशियल मॉडल में जैसे एक चीज आपने बताया कि अब जैसे सबसे इम्पोर्टेंट अपना सेल्स होती है। सबसे मतलब जो मेन होता है कि सेल्स को प्रेडिक्ट करना ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से पूरा फाइनेंशियल मॉडल कनेक्ट होता है। अब हम तो जितने ही मैंने मतलब प्रीवियसली 4-5 बार जब भी मैंने मॉडलिंग करी है, तो उस टाइम पे तो बस सिंपल पिछले 5-6 सालों के बस एक एवरेज लगा दिया एक्सेल में वो आगे बस उसको कर दिया। मगर ऐसा एक्चुअली में नहीं होता। मतलब वो मतलब आप क्लासेस अटेंड करके वो पता लगा है कि मतलब रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक हमें कंपनी का पता नहीं होगा कि कंपनी कर क्या रही है, कंपनी क्या प्रोडक्ट सेल कर रही है, तो बिना उसके तो हम मतलब कंपनी प्रिडिक्ट कर ही नहीं सकते। अब यूं भी नहीं कि अब एफएमसीजी कंपनी कह दी तो सब कंपनी एक तरीके से हमें मतलब सब कंपनी एक ही तरीके के प्रोडक्ट बेच रही है। अब हर किसी का भी अपना अलग अलग सेगमेंटेशन रहता है। तो वो सब चीजें कंपनी स्टडी करके और थोड़ा फिर ये कॉन्फ्रेंस कॉल सुन के थोड़ा इंडस्ट्री की समझ आती है, तब तभी वो सब क्लियर होती हैं। तो मतलब मैं तो जो भी मतलब एमबीए मतलब जो भी फाइन कोर इक्विटी रिसर्च साइड में आना चाहता है, मतलब मैं तो रिकमेंड करूंगा ही, क्योंकि आपका मतलब जो इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो ज्वाइन करें, क्योंकि एटलीस्ट क्योंकि एज अ फ्रेशर मुझे मेरे को भी पता है कि इतनी नॉलेज नहीं होती। क्योंकि जब मैंने भी 2019 में 2 महीने इंटर्नशिप करी थी एज इक्विटी रिसर्च वाली प्रोफाइल में करी थी, तो मैं भी उस टाइम पे बस नंबर पंच ही कर रहा था। तो मेरे को भी उस टाइम पे मतलब इतनी नॉलेज नहीं थी, टू बी ऑनेस्ट। तो धीरे धीरे मतलब और वहाँ इंटर्नशिप में तो हम बस नंबर पंच करने में बिजी रहते थे, क्योंकि वो जब प्रोजेक्ट इतने सारे आते हैं तो उस टाइम पे जब इतने बस से उनको तो टाइम पे डिलीवरी करनी होती है प्रोजेक्ट की, तो उस टाइम पे एनालिसिस नहीं हो पाता। और इंटर्नशिप के टाइम पे भी कोई ऐसा ये नहीं है कि कोई हमें सिखाएगा उस टाइम पे, कोई क्यों अपना टाइम इतना, क्योंकि हर कोई बिजी होता है जब नंबर्स आने लग जाते हैं जब कंपनी के, तो हर किसी के पास टाइम ही नहीं होता। उल्टा वो ओवर टाइम वगैरह मतलब शिफ्ट लेट नाइट शिफ्ट तक कर करके ही सब लगे रहते हैं उस टाइम पे, तो किसी के पास कोई टाइम ही नहीं होता सिखाने का। तो एटलीस्ट यहाँ पे मतलब आप तो हर हर वीकेंड तो सिखाते हो, मतलब जो हमारी 10:30 से 1 बजे क्लास होती है उसमें भी, प्लस जो मॉर्निंग हमारी 10 से 1 बजे क्लासेस होती है उसमें तो आप डेली मतलब उस चीजों को कनेक्ट करना भी सिखाते हो, कैसे न्यूज को एक्चुअली में कनेक्ट कर सकते हैं अपने उस इंडस्ट्री और अपने जो ये एनालिसिस कर रहे हैं सेक्टर का। तुम इतना कुछ बात कर रहे हो, मैं शॉक हूँ कि तुमने इतना पहले कभी इतनी बात नहीं की। आज तुम इतना कुछ बता रहे हो, मुझे पता नहीं था कि मैं तुमको इतना कुछ सिखा दिया। मतलब ठीक है, मैं तो रोज करते रहता हूँ आप वैसे, बहुत मतलब तो मैं तो बस मुश्किल से क्या बोल तीन रहा हूँ। चार परसेंट ही बताया होगा हाँ भाई, मैंने तुमसे इतनी बात तो पहले नहीं की होगी इतना कि तुम इतना कुछ मेरे को बता रहे हो। इसमें थी कि तुम्हारे मैं तुमको जब रेकमेंड किया था तभी भी वो तुम्हारे एक्सेल फाइल देख के रेकमेंड किया था कि इसको आता है और थोड़ा बहुत करता है। तुमने ऑटो के फाइल्स भेजे थे जब मैं फर्स्ट जॉब तुमको रेफर किया था। बोला था उसको कि चीजें चीजें आती है। मैंने भी तुम्हारा मॉक इंटरव्यू लिया था, थोड़े बहुत चीजें बताई थी। बट अब मुझे पता नहीं कि तुम इतना कुछ बता सकते हो। तो वही, इट इज गुड, इट इज गुड। मतलब मुझे भी अच्छा है कि चलो तुमको मिल गया जॉब, एंड वो तुम्हारा गैप था वो निकल गया। अभी प्रोबेबली गैप निकल जाएगा तो आगे Yes, ऑब्वियसली रेफर करने को बहुत इजी हो जाएगा ना। आगे जब भी तुम्हारा आता है किसी रेफर है या ना किधर ओपनिंग्स है, तो इजी हो जाता है रेफर yes। करने को। वो है। चलो हम तो ज्वाइन हो गया, तुम्हारा ज्वाइन हो गया। नहीं, अभी 5th से है सर, अभी सॉरी, 5th अगस्त से है। 5th से ज्वाइन है, अभी अच्छा पहले ओके फर्स्ट ओके। फर्स्ट का बोला था, फिर नेक्स्ट डे फिर उन्होंने बोला कि 5th से आना, क्योंकि वो इंटरव्यू में सर भी बता रहे थे कि वो ट्यूसडे तक कहीं बाहर हैं, तो बट ऑफर आ ट्यूसडे गया को। ना, ऑफर आ गया। हाँ, ऑफर तो आ गया। ओके, गुड गुड शुभम। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर। होपफुली विल थैंक कनेक्ट यू। अगेन, बी इन टच सो दैट हमारा बाकी भी स्टूडेंट्स है जो प्लेस हुए एनालिस्ट, उनका भी है ग्रुप, अपना एक ग्रुप है जहाँ पे ना सब एनालिस्ट ही है जो आर के एडवाइजर से गए हैं। वो लोग भी कुछ कुछ डालते रहते हैं ग्रुप में, ये स्टॉक बढ़ रहा है, रिसर्च करना चाहिए। तो थोड़े बहुत लोग सेल साइड पे भी गए हैं, तुम तो बाई साइड पे गए हो पोर्टफोलियो में। तो इट इज गुड। तो वी कैन बी इन कनेक्ट, कनेक्ट में रहते हैं। चाहिए तो अभी मॉर्निंग कॉल पे आ जाना स्टूडेंट्स को बताने को आगे के स्टूडेंट्स को कि क्या श्योर। चल रहा है मार्केट में, क्या लेना चाहिए। ओके, श्योर। नहीं, थैंक यू वो तो मैं शुभम। अटेंड करूंगा ही सर, वो तो डेली तो अटेंड करूंगा ही। हाँ वही, तुमको भी पता चलेगा, तुम्हारे फंड मैनेजर को बता दो कि अरे सर कुछ बता रहे क्या। हाँ मेरा वो ऐसा होता है ना, एक स्टूडेंट था मेरा, उसने ऐसे किया था। मैं मॉर्निंग कॉल पे कुछ बता रहा था, वो जाके उसने उधर ऑफिस में बोला, मतलब तूने ये क्यों बोला मेरी चीजें। हाँ सर, मैं को आज न्यूज नहीं पढ़ा था मैंने, तो आपका मैंने मॉर्निंग कॉल सुन लिया। तो हमको सुबह सुबह पता नहीं होते ना क्या न्यूज है, तो मैंने आपकी न्यूज बता दी। तो वो भी होता है मतलब,
वो अभी भी देखता है, अभिषेक करके बोलता है कि सर मैंने आज आपके मॉर्निंग कॉल सुने, ये पता चला, अच्छा पता है, मुझे पता नहीं था, ये सब चीजें मेरा मिस हो गया था। इट्स गुड कि चलो। वो क्योंकि हर कोई अपनी अपनी न्यूज बताता है, क्योंकि एक बंदे के लिए मतलब सब चीजें कवर करना मुश्किल ही होता है सर। वो भी मतलब ऊपर ऊपर से तो चलो पढ़ सकते हैं, मतलब फिर थोड़ा इन डेप्थ में अगर एनालिसिस करना हो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो एटलीस्ट मॉर्निंग कॉल में हर कोई आता है तो वो हर कोई थोड़ा इन डेप्थ रिसर्च करके एक्सप्लेन करता है चीजों को। अगर कोई गलती भी होती है तो आप उसको गाइड करते हो कि मतलब चलो ये हुआ है, क्यों हुआ है, मतलब और फिर चिल्ला क्यों दो हुआ, ना फिर कभी उसमें कभी, भी दो तीन, हाँ, चिल्ला दो उसमें भी कभी दो कभी। तीन बाय बाय पूछते हो। तो उससे क्या होता है, थोड़ा फिर इन डेप्थ थोड़ा पता लग जाता है कि चलो फिर उससे हम कनेक्ट कर पाते हैं चीजें। क्योंकि ऊपर से न्यूज, वैसे न्यूज़पेपर पढ़ लें तो इतना मतलब समझ में नहीं आती चीजें। समझ में नहीं आता। जो थोड़ा सा मतलब गाइडेंस मिल जाती है तो उससे थोड़ा पता लग जाता है, चलो इससे क्या इम्पैक्ट कहाँ पड़ेगा, तो चलो कहाँ की क्या चीज ट्रैक करनी है। तो वो तो सर क्लासेस तो मतलब जो न्यूज वाली क्लास होगी वो तो डेली ज्वाइन करनी है। So looking forward for it. So Shubham, all the best again. All the best. Very happy for you, and will always be in connect. And anything else? नो, Okay. Okay. Thank you, Shubham. Thank you. Thank you so much. थैंक यू। Come.